Okay. Okay. First, the definition. Okay. So, what is define the term? Is it a scalar or a vector? Give the units and dimensions of gravitational potential. So, the gravitational potential at a point is the potential energy associated with a unit mass due to its position in the gravitational field of another body. Okay, so like we studied yesterday, gravitational intensity was a property of the earth or a body, and exhibited force it can apply on 1 kg of the small mass. This is a big mass and this is a small mass. You can find out the gravitational intensity using F is equal to G mm by R square, and force which this small body is experiencing on per kilogram basis was the intensity. Okay. Now, slight change. Now, the way you look at this situation is, what is the potential energy contained by this body of 1 kilogram? Okay. That potential energy which it contains due to its position in the gravitational field, which means at different positions, it will have different potential energy. It is all 1 kg. If it is closer, if it is here, if it is farther, with respect to the center of the other big body, where is it located will decide the how much potential and gravitational potential it has. Okay, so the other way to define is the amount of work. Okay, so magnitude wise, what does it mean? Okay, obviously it is positional, and it is the potential energy contained by the unit mass due to its position in the gravitational field of another body. But what is this potential energy which has got into it? Though it is 1 kg, it has a potential energy inside it. So how do you find out that stored potential energy? So the MGH. gravitational potential at a point in the gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. How do you find the gravitational potential? You do some work. That work which you do without accelerating the body. So the body is at infinity and comes because of attraction with a bigger mass, but is not allowed to accelerate. So it is without acceleration. Okay, without acceleration. Whatever is the work you do to bring it from infinity to this point gets stored. This work done, which you have done to bring it down, gets stored in this body as the gravitational potential energy.
So this is a work done associated with 1 kg. So this work done gets stored in the form of gravitational potential energy of this 1 kg. And gravitational potential energy of 1 kg is nothing but gravitational potential. So whatever is a gravitational potential energy, but if you are 1 kilogram, we will say you have gravitational potential, not gravitational potential energy. Every 1 kilogram you contain has some energy associated with it. That 1 kilogram will be called as gravitational potential of that point. By virtue of what? Because you're present near another big body, because of presence of the near. And how do you calculate it? It is the amount of work you did to bring this body at some distance r from the big body, but from infinity. So earlier, the distance between the two bodies was infinite. This is a smaller body, and the bigger body was at infinite distance. So this distance is infinite. Now the new distance is only r. Okay, r. So the work you have to do to bring this body without accelerating, remember, will be called as, so it's a scalar. Gravitational potential is a scalar. It has no direction on its own. And it's joule per kilogram for obvious reasons. ठीक है, So ये तो बहुत सिमिलर सी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, hmm, इट्स अ बिट एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाँ, it is. उसमें भी दो चार्ज होते हैं, एक बड़े चार्ज के फील्ड में आप आते हैं, तो यहाँ पे यू आर एंटरिंग द फील्ड ऑफ अर्थ. यस, ट्रू. Definition should be clear. Work done V, it's represented by capital V. ठीक है, सर हम जस्ट, हाँ हाँ, बोलो. नहीं समझ लगा कुछ आप बोल रहे थे. नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा. Okay. ठीक है. Let's now come to the expression. The expression of gravitational potential. Yeah. So the expression is, if this is your mass, generally drawn as a sphere. Okay.
छोटा ही बना लेते हैं इसको, शिफ्ट इट हियर, smaller mass. Okay. And this is the line passing through its center. You have a mass here, point B. So, assume this is Earth and it is a perfect sphere of radius r and mass. And the mass of the Earth centered on its center. So let's calculate the gravitational potential at any point P. This is R. And R is greater than R. R is the radius of Earth. Okay. Take 2 points A and B on the line OA. So this is center O. This is A. Sorry, this is A and this is B. Take 2 points. OA is equal to OA is equal to X. And A to B is dx, a very small movement from A to X. So gravitational field F is equal to gm into 1 by x square is equal to gm by x square. This is the gravitational force of attraction. ठीक है? ठीक है. Why? Because this mass is of how much kgs? 1 This kg. much. ठीक. Basically intensity of gravitation field ही है, क्योंकि 1 किलोग्राम के लिए फोर्स निकाल ली ना हमने. Okay. So let's now move this from A to B. Let's move the mass of 1 kg from A to B. This is and by an amount dx. Right. So the work done will be how much? dw is equal to, assuming dx is so small, dx is so small that there is no change in the force during the motion from A to B, क्योंकि x तो बदल रहा है ना, डिस्टेंस तो बदल रहा है दोनों के बीच में. एक का डिस्टेंस x हो जाएगा, दूसरे का x माइनस dx है, but dx is very small, so force remains constant. So dx is infinitesimally small. We have shown, so work done will be how much? F dx from, and this work has been done without accelerating. There is no change in velocity or anything. There is no change in, so you can't attribute anything to kinetic energy change. So it is without acceleration. So whatever is the velocity, if at all, just moves and is kept here. No change in velocity. So there is no change in velocity means no acceleration. And now we know the force is gm by x squared dx, dw. Integrating both the sides, dw is equal to gm by x squared dx. Integrating, this implies w is equal to gm dx by x squared minus gm by x. Or this is from infinity to r. Minus gm by r plus gm by infinity is equal to minus gm by r. So this is the work done per unit mass basis. So we will call it gravitational potential, Vp, universal gravitational constant, mass of Earth, and the distance of the object from it. So it's minus gm by r. At a distance 0 to r निकाला था हमने work done. Infinity to r.
What is the work done if the body initially is at infinity? Matlab A is infinite and B is P at a distance R. How much work you have to do to move the body from infinity to point P? It will be this much. So this is the potential of this point P. So what is it? It's a so the work done on this 1 kg mass to bring it from infinity to a distance R is minus gm by R and is a measure of the work done. Sorry, it's a measure of the gravitational potential. It's a measure of gravitational potential. Read this very carefully. This is the understanding part of it. What was it from definition standpoint? And then you converted it into an expression as a part two. It was a scalar. It was something to do with work done on 1 kilogram when you bring that 1 kilogram from infinity to R. So gravitational potential at R. Right. Right? Okay. Done, 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 done. Okay. So what are the conclusions from this expression? So if you want to measure the work done in, bringing 1 kilogram mass near to Earth, the measure is gravitational potential. And what are so one is the gravitational potential, Okay. the gravitational potential at a point is always negative. Okay. Second, when R is infinity, gravitational potential will become zero. So maximum gravitational potential, क्योंकि नेगेटिव से तो बहुत ही बड़ा है. Hence maximum gravitational potential is at infinity. नेगेटिव से तो सबसे बड़ा आएगा 0. 3. If you're at the surface of the Earth, R is equal to R. So Vp is equal to minus Gm by R at the surface of the Earth. So work per unit mass. It's a work per unit mass. All
एक मिनट, ये है क्या वैसे? क्या लिखा है? समझ नहीं आ रहा। क्या? ये आर। आर है ना? अच्छा, ये आर अल्फा लग रहा था ये। स्मॉल आर। हम्म, अरे वो राइट। ठीक है, राइट। Okay. So let's now study the gravitational potential at a point due to Earth. ठीक है। Potential at a point due to Earth. So let's take Earth. R M. So the work done in bringing a body from mass from infinity to a point we have already calculated comes out to be minus g mm by r. Okay, when r is greater than r. अर्थ के बाहर था ये पॉइंट यहाँ P पे at a distance r from the center. This is what we calculated. Minus gmm by r. Let's shift this point inside Earth now. At this point. So r is, P is here inside the Earth and r is less than r. तो पहले तो आप इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आए और फिर आप उसको अंदर ले गए सरफेस से. So you will calculate the potential. Let me just write something on the left hand side. वो जगह छूट गई है खाली. So it is Vp is basically the work done from infinity to P. Now P remember is inside, अंदर है. तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. सो वन इज इन्फिनिटी टू क्यू. तो पहले पॉइंट यहाँ पे लेके आए P टू क्यू, देन Q टू जीरो पे लेके आए ये वाला. इतना ट्रेवल करा है. पहले इन्फिनिटी पे थे आप, मतलब यहाँ से इन्फिनिटी से पहले सरफेस पे लेके आए. वो वाला पार्ट ये कैलकुलेट कर लेंगे. ये पॉइंट P है आपका. P अंदर है, सॉरी. W टू Q. इन्फिनिटी टू Q आएगा पहले और फिर, सॉरी, इन्फिनिटी टू P है. इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना है. इन्फिनिटी टू Q प्लस WQ टू P डिवाइडेड बाय यूनिट मास. रीड दिस केयरफुली. क्या हुआ है? सो द बॉडी वाज हियर at infinity. You have to calculate how much work is done when the body is now reaches the point P. Only difference is पहले infinity to यहाँ पे लाते थे. अब इस पे फोकस नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ. Now focus is inside the, वो वाला कर लिया हमने केस, ये वाला जो ऊपर वाला है ये डेरिवेशन में. P is outside Earth. What we are focusing now is deep part of point due to Earth, inside Earth. So the point P is inside Earth and the mass is brought from the point infinity to P. तो infinity to P लाने के लिए दो रास्ते, दो तरीके हैं, दो स्टेप्स हैं रादर. एक स्टेप है infinity to Q पे जंप करवाओ और Q से P पे जंप करवाओ. स्टेप टू,
Step 1. So the 1 kilogram mass, which is here, has to be brought inside the earth in 2 steps. First step is on the surface of the earth. Q is on the surface. नहीं समझ में आ रहा, प्लीज आस्क. समझ में आ रहा है तो कंफर्म. ओ सॉरी, समझ आ गया सर. यस, सही में म्यूट था. देखा नहीं. कैमरा बंद, म्यूट. ये म्यूट हो गया था, मैं गलती से मैं कुछ बोल रहा था. ओके. Yes. So let's say, okay, so this is minus m. Let's do this f ds from infinity to r, which is radius q ka distance from the center, because the coordinates will be measured from the center of the earth. So you were at infinity, at q your r becomes capital R. Plus, now you will move from surface of the earth to R. Okay, which means the point P is located at a distance R from the center of the earth. This point P. The radius of the earth is this R. I will just take this off from here. This R. Let's concentrate on small r. कैपिटल R यहाँ लिख लिया मैंने अलग से. ठीक. R to R F D S. ठीक. Or you can see that force, the line of force, the direction of the force, and the displacement are in the same direction. So theta is 0 degrees. Fs cos theta होता है ना work done तो. हाँ जी. But remember, all this is happening without acceleration. Gravitation at a point due to Earth, inside Earth. The 1 kg mass is at infinity, brought inside Earth without acceleration. Which means at constant velocity. जो थी वही की वही. Infinity भी वही थी, अंदर भी वही है. Okay. Now let's solve it. So this will be minus 1 by m. F is gm by r square into minus dr, because it is reducing on the left, plus this is r is equal to infinity to r is equal to r, plus from r is equal to r to r is equal to r, and this is also gm by r square minus dr. Okay. This is minus 1 by m infinity to r. If you solve it, you will get gmm. लाने की क्या जरूरत है, ला सकते हैं वैसे. 1 kg है. gm makes no difference actually. gm infinity to r. If you integrate it, let's integrate it ना. इसको integrate यदि कर तो ही देते हैं. इंफिनिटी तक है फिर. अच्छा ठीक है. वो अच्छा, तो आर की लिमिट्स है ना. definite integration है ना. हाँ. Basically the integral is going to be gm r raised to power minus 2 minus 1. हाँ. -2 कौन? या हाँ. -2 +1. नहीं, -2 +1. +1 हाँ वही ना. हाँ. +1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड कुछ -2. नहीं. हाँ, खत्म.
मतलब खत्म माइनस ही टू हो प्लस मतलब, वन तो ये और ये माइनस वाला। माइनस। हाँ ये गया ना फिर माइनस, हाँ हाँ। क्योंकि माइनस था वो इससे चला जाएगा। हाँ, ठीक है। क्या फर्क पड़ रहा है? दिस इज फ्रॉम आर टू इक्वल इन्फिनिटी। टू इन्फिनिटी टू आर इज इक्वल टू आर प्लस सेम हाँ जी, जी मतलब वही आ जाएगा, कहते हैं एम GMR आ जाएगा, GM/R, आर टू आर माइनस वन बाई एम इंटू GMR, ऐसे। जी एम बाई आर को मैं लिख सकता हूँ जी एम आर। हाँ जी, GM। पहले तो हाँ आर डालूंगा फिर माइनस वो जी 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी प्लस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर। तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, तो वैसे भी 0 ही हो जाएगा, GM/इन्फिनिटी। हाँ ठीक है। माइनस वन बाई एम जी एम बाई आर प्लस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर। कट गया। क्या आ गया यार? ये तो आर माइनस। स्क्वायर रुको रुको 3/2 आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आर ऐसा एक्सप्रेशन स्क्वायर। आ रहा है। ये कट गया, ये ठीक काटा है। आर टू इंफिनिटी आर टू आर भी सही लिखा है। ये लिखा है जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर था यार यहाँ तो, हाँ था। सो जी एम बाई इंफिनिटी 3/2 आर बाई जी वी पी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड निकालने के लिए हमने लिया जी इन्फिनिटी टू आर और आर टू इन्फिनिटी। एक छोटी सी गलती लग रही है मुझे, और वो गलती ये है कि पूरा अर्थ का मास लेना चाहिए था हमको, रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं लेना चाहिए था मास। जब अंदर चले गए आप अर्थ के, हम्म। तो फिगर में तो यू यू शुड बी वरीड अबाउट ओनली दिस मच ऑफ अ अर्थ ना, जहाँ अब। पे आप पहुंचे हो। हाँ जी। बट हमने तो पूरा ले लिया, तो अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन से करूं तो मास एम सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब करस्पॉन्ड्स टू एम, 1 मीटर क्यूब will correspond to so much and 4/3 pi r cube will correspond to this much. तो ये जो मास है ना, ये वाला मुझे लगता है ये ठीक नहीं लिया हमने यहाँ पे इस जगह पे। इसको वी शुड चेंज इट विद दिस दिस एक्सप्रेशन, मतलब एम आर क्यूब बाय आर क्यूब, क्योंकि इसमें एम छुपा हुआ है मास के अंदर। मतलब मैं इंटीग्रल अभी नहीं लेता इसका, मैं इसका अलग से यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रल जी एम, ऊपर क्या था, टेढ़ा है भाई ये तो, जी एम बाय आर, नहीं जी एम बाय आर, इसका भी आर स्क्वायर ही था हाँ जी। जब कर रहे थे, जी एम बाय आर स्क्वायर। सो जी एम बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो एम एम तो लिखना ही नहीं ना अब, अच्छा एम लिखना है, बट एक आर क्यूब बाय आर क्यूब भी लगा देते हैं। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, यू दिस विल गेट यू जी एम आर बाय आर क्यूब। ठीक है, तो लेट्स नाउ सॉल्व दिस। सो दिस इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट जी एम आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, and let's now put the values. This is from where to where? From R to R। तो इसको भी हटा देते हैं, चलो इनफाइनाइट वाला तो एक चलता है, बट लेट्स पुट इट हेयर। दिस विल बिकम जी एम
आर स्क्वायर बाय आर क्यूब माइनस GM r² बाय आर क्यूब। ये कट जाएगा, कितना बन जाएगा ये? GM/r ना, यस। तो ये दोनों कट गए। बट व्हाट हैपन टू दिस माइनस साइन? ये तो रहेगा, ये तो इस केस में जाता ही नहीं। तो ये -GM/r² रहेगा एक, और दूसरा बन जाएगा प्लस। सो GM बाय -1/m, GM/r एक आ गया प्लस GM/r -GM r² बाय r क्यूब। सो हमने शायद कुछ से इंटीग्रेशन गलत कर दी थी। एक मिनट, इसकी इंटीग्रेशन हमने सही करी है। R² भी तो आएगा एक, 2 आर नहीं, स्क्वायर बाय टू। मतलब GM/r² को कर रहे हैं ना हम तो। जी हाँ, एम आर स्क्वायर मतलब। आर के इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। आर R dr विल बी हाउ मच? तो ये तो r² बाय 3 होना चाहिए, r³ बाय 3। नहीं, ये तो कट गया ना, R² और R3। ये तो हाँ। इंटीग्रेशन के बाद है, अच्छा अच्छा। पोस्ट इंटीग्रेशन। नहीं नहीं, ठीक है। सही है ना? 2, हम्म। तो एक तो 2 भी है यहाँ पे हमारे पास, ये 2 भी है हमारे पास। सो दिस इज -1/m। ये कितना बन गया? 3/2 GM/r -GM r² बाय r क्यूब। और ये बन गया हमारा -1/m। क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें? आई कैन टेक कॉमन ऑफ GM। इसका कहाँ गया 2? यहाँ पे भी तो होना चाहिए 2, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा? 3 -r² बाय r²। तो ये बन जाएगा -GM/2mr 3r² -r² बाय r²। तो बेसिकली ये बन गया -GM/m। ये m 3r² -r²बाय r क्यूब। भाई -GM ऊपर नहीं है इंटीग्रेशन में, पर यूनिट मास करना है ना, तो वर्क हम्म। डन पर यूनिट मास। हाँ अच्छा, मास इज ऑल्सो 1 kg ना, तो 1 m लिख के, और जब 1 kg ले ही लिया तो m = 1 kg है ना। जी। ये भी तो नहीं रहेगा। तो -GM 3r² -r² बाय r क्यूब is the potential of the body of 1 kg at a distance r from the center of the earth when it is inside the earth। ठीक है। तो अगर हम इसे यूज करना चाहें, तो पहला तो हमें पता ही है, अगर टेबल बनाते हैं तो VP का जो फर्स्ट फॉर्मूला था, दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड -GMM/r व्हेन r वाज ग्रेटर देन r। नाउ इफ r इज इक्वल टू r, लेट्स यूज दिस, इसको इसमें डाल देते हैं। तो VP कितना आ जाएगा? इक्वल टू -GM बाय, डालना जरा, r इज इक्वल टू r, ये हो जाएगा। अच्छा नहीं, 2 भी है एक नीचे, सॉरी यार, 2 भी है। अगर यहाँ पे r इज इक्वल टू r डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2r²। वो 2r³ से कट जाएगा, तो r आ जाएगा। एन VP इज इक्वल टू -GM 3r² -r² अपॉन 2r³ फॉर r लेस देन r। और अगर हम बात करें
फोर्थ केस की, इफ r इज इक्वल टू जीरो, okay, r is equal to zero, first situation, second situation, third situation, fourth situation, r is equal to जीरो, यहां पे जीरो डाल दो, तो माइनस GM 3r² माइनस जीरो अपॉन 2r³ माइनस GM इंटू 3/2 1/r, ये आ गया फॉर r इज इक्वल टू जीरो के लिए, माइनस GM 3/2r. तो एट जीरो, एट सेंटर ऑफ द अर्थ ऑल्सो देयर इज अ पोटेंशियल. वाह. ओके, और क्या ले सकते हैं? फिफ्थ, तो नहीं, तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो मैक्सिमम है ना. द मैक्सिमम पोटेंशियल एट इज इट इन्फिनिटी, राइट? हाँ जी. फ्रॉम इन्फिनिटी. सो जो ये वाली वैल्यू है, दिस इज द मैक्स. सो V एट द सेंटर इज 3/2 टाइम्स द वैल्यू एट द, सॉरी सरफेस, नॉट मैक्स, सरफेस. ये देख रहे ना, GM/r इसमें भी आ रहा है, GM/r. हम्म. दिस इज V surface, right? So V center is 3/2 times V surface. Oh man, क्या? हो गया. इतना छोटा सा ट्रीटमेंट था. So you can find the gravitational potential inside Earth also, inside a body, due to just that it is a bit cumbersome. काफी इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड है. मतलब लेंदी है like, लेंदी है, टफ टू सॉल्व है. इंटीग्रेशन थोड़ी सी लेंदी होती है हम्म, हिंदी है. देन डिफरेंशिएशन. Yes, quite tiring, man, to do this. Okay, next topic. I'm going to the next page now. Oh, use page key. Okay, so what is the relationship between gravitational field, ग्रेविटेशनल फील्ड और intensity मतलब, and potential relationship? ठीक है. dV is equal to minus EdR. मतलब dV by intensity is equal to minus dV by dr. So the rate of change of potential gradient, मतलब जैसे dx/dt होता है, पोटेंशियल कैसे डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, will tell you the intensity at that point. So it's called potential gradient, negative gradient of potential. The slope is negative, negative gradient of potential. Okay. So this is one topic, which is gravitational potential, that you need to get a hang of. I don't think so ये relationship पता होना चाहिए, ये वाला relationship, how to find. कई बार they give you a relationship between V and R. This is a vector and V is a scalar.
तो डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वो स्केलर ही आता है। तो कई बार आपको वो क्वेश्चन में देते हैं ई एज अ वेक्टर, तो यू हैव टू कैलकुलेट वी, यू हैव टू इंटीग्रेट ई डी आर आ जाता है। ई डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी, सो यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। ये आर की टर्म्स में दिया होता है, मे बी गिवन एज 2r², सो 2r² dr is equal to minus dv, so 2r³ by 3 definite integral r is equal to 1 to 2, so this will become v2 minus v1, change in potential। मतलब आपका बड़ा मास यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आ रहा है, थोड़ा सा आगे गए dr आगे, so the potential changed by an amount dv when the displacement that happened was dr due to this mass. So 1 kg of mass was lying here, it had a potential v1, it reached here, it had a potential of v2. The change in potential v2 minus v1 is dv, and divided by the distance moved through, so dv by dr, the rate of change of potential with distance. So this is a characteristic of the field potential, and this can fetch you what is the intensity, which is the force per unit mass. So the rate of change of potential with distance tells you the force per unit mass, numerically equal. Bit difficult to understand. थोड़ा एक और बार समझा दो। So if you have a big, this is your big mass, this is your mass, small mass. So you can find the potential at this point. अब ये सीखा हमने, हम्म। ये सीखा ना हमने। हाँ जी। Take derivative of both the sides, dv ठीक। by dr. So minus gm, sorry ये क्या लिख दिया है, अब ये लिख दिया इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव, हम्म, डेरिवेटिव ले लिया। हाँ। ये क्या था, इंटेंसिटी। हम्म। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल v1 है, मान लो आपका v, अच्छा। आप थोड़ी तो एट अ डिस्टेंस r, you ठीक move है। by another small distance between them. The distance now is, for example, let's say the distance is dr, some point to some point. So the potential now is v2. Potential changes by distance, right? Inversely. So यस। earlier, so v1 minus v2 is the change in potential, right? हाँ So जी। for every dr change, there is a dv change. For every one, what will be the change? dv by dr. Slope नहीं होती जैसे. For every हम्म, 1 second, the velocity changes by 2 meters per second. The rate of change of potential with respect to distance. The rate of change of potential with distance, dv will give you dv by dr, right? The rate of change of potential with respect to distance. ठीक। dv by dr, और dv by dr कितना आ रहा है, इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड के बराबर होता है न्यूमेरिकली। ठीक है, समझ गया। अभी भी मुश्किल है समझना, बट जितना आ गया काफी है, चलन दो। ठीक। ठीक है, let's now talk about gravitational potential energy, which is a lot easier than this. ठीक। So gravitational potential energy. So we know that what is the potential energy, just for your understanding. It is not due to motion. Motion वाली तो kinetic energy कहलाती है. हम्म। Potential energy is by virtue of your position.
हाँ जी। So energy stored in a body by virtue of position. कैसे? जैसे कि gravitation में it is all about how much high you are from the Earth's surface. So your position with respect to something, not isolation. So this is surface of the Earth, and how high are you from it, or so h. Similarly, if you are looking into the world of compression spring, तो ये मास है आपका, तो अब आप कंप्रेस हो गए. This is a compressed situation. So all your work done, will get converted into the potential energy in the spring. And all the work you did to pick this body from this height to this height, ऐसे उठाने में भी आपको काम करना पड़ा against Earth's gravitation. Similarly, to compress it, also you need to do work against the spring's reverse force. Reverse धक्का मारेगा spring, right? Restoration. Spring would like to be in a neutral position. So if you push it, it will send you back. So you have to put work to overcome that force. So without acceleration, give the same force which the spring is giving you. Keep on adjusting it as per the force you feel and keep moving it slightly. And that work which you will do will get stored in the spring as the energy of the spring. So all these energies are because of position. So this was a position. Now the new position is this. The spring was here, and now the spring is here. So it has undergone a compression of X. This spring is compressed X. ठीक. ठीक है जी. So this is due to and supposingly there is a body, and the body undergoes external forces. Multiple external forces act on our body. So this is acting, this is acting. Multiple forces are acting on our body. If this is the case, when multiple forces are acting on the body, then the body is subjected to multiple force, undergoes a change in position. Undergoes a change in position. A simple example was I lifted it using force. That was the only force to change its position. But you cannot have just one force acting on a body to change its position. You can have multiple forces acting on a body to change its position, right? So I'm applying force here upward. Somebody says I will connect it to a string and pull it like this. So the net motion may be dictated by like this. Somebody may say I will pull the string like this, right? हाँ जी. So I want to take it straight. You want to take it at 30 degrees. You want to take it at 75 degrees, so on and so forth. So body, when it changes its position, is because of multiple forces. And what you need to do to calculate the potential energy that gets stored in the body, calculate the work done by each of the forces individually and add them up. Work done is basically a scalar. So add the work done. So when a body undergoes a change of position due to multiple forces, right? You calculate the uh, independent work, माने अकेला अकेला calculate the work done due to each force. The work done by these forces on the body, right? Independent of whether there is another force or not. Calculate them independently and add them up. Calculate the work done on the body and add them up. This is the way you approach it. So individually you can find out. Okay. ठीक. Okay. So if a body is now, say, so far that the word position has no meaning. So this is you are here. This is Earth. And you go very far from Earth, so far, practically at infinity. You have no position. I mean, there is no interaction with Earth now. If that is a scenario that you have no interaction left because you're so far,
the potential energy is zero because it's a positional energy. Now you have no position with respect to Earth. No position because you're at such a far distance, you can't define it. ठीक Right? So this will be called as a zero level. This will be called as a zero level situation. No interaction, zero potential energy. ठीक है. Yeah. And सब that's सही why I लग didn't. Huh? सब सही लग रहा है. थोड़ा सा ना डेफिनेशन थोड़ी टफ है लेकिन क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल टू डू. Definition derivations are cumbersome. They don't come naturally easily. ग्रेविटेशन चैप्टर में डेरिवेशंस मुश्किल होगी फिर. यही है जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट. स्कूल में तो ये खैर आई डाउट कि वो अर्थ वाला पूछेंगे जो हमने करा है. आप पूछ भी सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल स्कूल. नहीं नहीं अनलेस पढ़ाया हो. आई थिंक नहीं पढ़ाया नहीं, नहीं होगा. पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया है. पढ़ाया है. हाँ हाँ, यहाँ तक एक बार पोस्ट होगा, फिर भी क्या ख्याल है, मेरा कोई भरोसा नहीं है ना स्कूल में. क्योंकि तो टॉपिक्स तो होते नहीं, नाम होता है चैप्टर का. और सीबीएसई जो है टॉपिक वाइज डिलीट करती है, ऐड करती है. तुम्हारे स्कूल का पता नहीं होता कि क्या पूछने वाले हैं. हम्म, हो सकता है कोर्स में ही ना हो. आप पूछ लो. हाँ जी. Check it out. Read it carefully. What is the definition of gravitational potential energy? At a point. It is defined as the amount of work done. अब 1 किलोग्राम नहीं है बस फॉर योर इंफॉर्मेशन. जब 1 किलोग्राम था इट वॉज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. नाउ नथिंग इज पर किलोग्राम बेसिस. So amount of work done in bringing the body from infinity to that point. So let's say you have a same situation. You have this and a body here. Now you move this body by from some point to some point, and this is the distance x, and it is moved through a distance dx. Then the work done dw is f dx, and the body is moved from infinity. अभी तो ये हम पॉइंट दिखा रहे हैं दो. A to B is dx. Sorry, B is not here. B is there. Okay, ये B है आपका. So B. So the body's position is here at a distance x from the center of the Earth. So dw is equal to f dx, and f is given by gmm by x square dx. dw, the work done in bringing it from infinity to x, is gmm by x square dx. And you calculate it. So this will be minus gmm by x. Infinity to x is equal to minus gmm by x. So अगर ये पर यूनिट मास हो जाता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाता, बट ये अब वर्क डन इज नथिंग बट जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी.
So this is not 1 kgs. You can't write minus gm by x, minus gmm by x. ठीक. So expression of gravitational potential energy is this. It's a negative. Okay. Yeah. And negative sign shows you what? The attractive nature. Stability की situation है. The more closer you come, attracted to the earth, the more stabler you become. The more hanging you are in the air, the less stable you are. And the moment you're left, you straight away come to the position of stability. So attractive force is always associated with negative potential energy. ठीक. We must stay grounded. Yes, very important. Yoga teaches us stillness. Stay grounded, stay stable. Yes. Okay. The ninth standard, what you learned was this. Change in potential energy is minus mgh. Sorry, plus mgh था. ये भी मुझे सीखा था पता नहीं फिर. सिखाया भी था कि नहीं. हाँ हाँ ठीक है. बहुत सिखाया बेसिक होगा. थी, बहुत बेसिक सी थी ना 9th. हाँ क्योंकि see, if you have a u as minus g mm by r, for example, on the surface of the earth, and then you move it above the surface of the earth by amount h. This is your u1, this is your u2. ये बढ़ गया. ठीक है, तो नेगेटिव साइन वाला क्वांटिटी जो है वो घट गया, तो बढ़ गया वो, तो ये बड़ा हो जाएगा. सो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच माइनस प्लस जी एम एम बाय आर is equal to, okay, so let me apply the same binomial theorem here and say this is minus g m m r. क्या कॉमन ले सकते हैं? r कॉमन ले लें. r ले लेते हैं चलो. So this will become 1 plus 1 by 1 plus h by r raised to power minus 1. So this will become minus g mm by r 1 plus 1 plus h by r minus 1. So this will become minus g mm by r 1 minus plus minus h by r. Okay. So ये कितना बन जाएगा? ये कट गया. g mm h by r. ये क्या बन गया? एम जी एच क्यों नहीं बनाई? जी एम एम बाय आर, ये क्या बन गया? एम एच जी एम आर स्क्वायर, ये आ गया ना. अच्छा, आर और आर, तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर क्या था? एम जी, वेट, फोर्स, एक्सपीरियंस, एम जी एच आ गया. So if ठीक. you lift a body, so this formula u is equal to minus gm by x is your potential energy formula. So if you lift a body from the surface of the earth, ये surface है, by amount h, you can get the values like this. ठीक. Okay, tell me, what does this mean? This क्या लिखा है मैंने एक्सप्रेशन? I mean to be. क्या मतलब है इस एक्सप्रेशन का? व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे? Hmm. Hmm. अभी हमने पढ़ा था v, इससे पहले वो पर किलोग्राम बेसिस पे था. Hmm. अगर पर किलोग्राम बेसिस पे मत पढ़ो तो u बन जाता है वो. सो v इज पोटेंशियल एनर्जी पर किलोग्राम.
ठीक। तो इसलिए ओके। ठीक। ठीक। okay, so assume you have a situation where you have some masses. Three masses are there: m1, m2, m3. Okay, now there is a gravitational field due to all these masses. Gravitational field होगा, राइट? सो ये जो सिस्टम ऑफ मास है, इसकी वजह से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ओके, विच इज एम नॉट। एक बॉडी है, उसके अंदर मान लो वो एम नॉट है, उसका डिस्टेंस इससे है r1, इससे है r2, इससे है r3. So these are the masses, and this is a point mass, test mass m naught. You have to find what is the potential energy stored in this. So you will say, okay, every mass m has a potential at the location of m naught. Okay, this location, ये m naught की location है, m naught यहाँ पड़ा हुआ है. तो जो m1 मास है वो बोलेगा मेरा पोटेंशियल है -gmm/r1. दूसरा बोलेगा मेरा पोटेंशियल है -gm/r2. The potential of the field of m1, m2 and the potential of field of the third mass, वो बोलेंगे हमारी ये पोटेंशियल है. क्वेश्चन है एम नॉट के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है सबकी वजह से. मतलब बड़ा सिंपल है. तो जो फील्ड है, ये फर्स्ट फील्ड, वो बोलेगा कितना मास रख रहे हो मेरे अंदर, बोलेंगे एम नॉट. वो बोलेगा मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे तो यही वाला फॉर्मूला, एम इंटू वी. कितना मास रखा, एम नॉट. वी कितना है मेरा, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एम नॉट मास in the field of first mass will be this. Then in the second, it will be minus g m naught by r2. And for the third, it will be minus g m naught. ये तो v है सिर्फ. This is v3, this is v2, and this is v1. Whereas we are supposed to find u1 plus u2 plus u3. So add these and you will get the answer. ठीक। So if you have point masses, you know, and they're constituting a isolated system. Situation number 2, there is no test mass or a mass. So these are three masses located at a distance from each other of, say, this is r12, this is r23, and this is r31. Example. And the question is, ये तीनों है, तो ये तीनों की वजह से what is the gravitational potential energy? Again, the same thing. You will say, okay, the mass m1, for example, is a test mass. So it is lying in the gravitational field of 3 and 2. So minus g m1 m2 by r12 plus minus g m1 m2 by r31. ठीक है। नहीं, ठीक कैसे है? ये सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक दूसरे की वजह से. ये दिस इज म्यूचुअल. ये m1 और m3 के बीच की है. हाँ जी। ये m1 और m2 के बीच की है, वो m1 और m3 के बीच की है. ये दोनों तो रह गए ना अभी. तो इनको भी निकाल लेते हैं। वो हाँ जी वाला फंडा बहुत अच्छा है टफ टॉपिक्स में. हाँ जी. वो हाँ जी तो ठीक है बाबूजी, लेकिन आता तो कुछ नहीं जी. समझ ही नहीं आया. एक और जुड़ेगी. कॉमेडी शो होता है इसके अंदर. एनीवे, इट्स फाइन. कौन दिमाग लगाए भाई. नहीं नहीं, ऐसी बात। ये समझ आया क्या करा है? सो क्वेश्चंस जो आते हैं उसके अंदर यू मे बी गिवन पॉइंट masses and you say collection of these masses, what is the gravitational potential energy of this collection? It constitutes an isolated system. And then they may say situation number 2, now we keep a mass at the center of the square. What is the potential energy of this mass? So one is the potential energy of the system because of its interaction with each other. Second is at the center. अगर कोई बोले सारी एनर्जी निकाल दो,
तो बोलो जी, आपस में जो इंटरेक्शन वाली एनर्जी वो तो हमने अभी लिखी है, और सेंटर वाली एनर्जी जो है वो ये लिखी है, तो उन दोनों को ऐड कर दो। जो सेंटर पे आ रही है M0 के साथ सबका इंटरेक्शन, आपस में जो इंटरेक्शन है वो अभी हमने 3 लिख दी, ये वाली, आपस में तीनों का ये इंटरेक्शन है, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। आइसोलेटेड सिस्टम, अब इनके बीच में एक और मास भी रख दिया, इस मास की तीनों की वजह से जो इंटरेक्शन है वो ये भी लिख दी। आइसोलेटेड वैसे बोले तो क्या होते हैं, मतलब? मतलब दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीथिंग एल्स, दे आर लाइक दिस, अच्छा। दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद अ फोर्थ मास। ठीक है। अगर फोर्थ मास भी रख दिया तो फोर्थ मास का इससे 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 भी ऐड कर दो, दैट बिकम्स द टोटल एनर्जी। आपस में जो पोटेंशियल तो एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की, प्लस जो चौथा मास रखने से चौथे मास के ऊपर आई, वो भी ऐड कर दो, दैट इज द टोटल सिस्टम ऑफ द एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूटिंग फोर मासेस एक्चुअली इन आइसोलेशन। मतलब अगर कोई हमें कोई पार्टिकल सिस्टम दे रखा तो हमें उसकी हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी निकालनी है, निकालने को बोल दे। हाँ, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, यस, ठीक। सबका। तो जैसे कि ये है, इट कंबाइंस बोथ। पहले तो मैंने बोला था M1 is in the gravitational field of M3, but M3 is also in gravitational field of M1। ठीक है। तो ये एनर्जी दोनों को इंक्लूड करती है। नहीं तो कोई बोलेगा ना, आपने ये M1 इन M2 लिया है एंड M1 इन M3 लिया है, तो अब आप M3 इन M1 लो, मैं बोलूंगा ये इंक्लूडेड है भाई M1 M3 में। इट्स ऑफ अ जॉइंट सिस्टम, दोनों पार्टिकल का जॉइंट है ये, म्यूचुअल। ये कोई M3 का M1 पे सेपरेट नहीं होता और M1 का M3 पे सेपरेट नहीं, कॉमन है। हाँ, एक मिसिंग था भाई, आपने M2 और M3 का बिल्कुल भी नहीं लिया, आ गया। तो हमने ऐड कर दिया, ठीक। समझ रहे हैं। आ रहा है समझ में? हाँ जी। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है टू गेट फ्रेंडली विद दिस टॉपिक, बट वंस यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन इट, इट्स इतना मुश्किल नहीं है ये। थोड़ा क्वेश्चंस करके देखो, फिर सब और समझ हाँ आता है। हाँ, तभी समझ में आएगा ये। दैट इज द हम्म, ओनली वे यू विल be able to have a grip on this topic. So let's do some questions now. Now हाँ that we have understood a bit, थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमें क्वेश्चन करने में से ही वो समझ में आ जाएगा इमीडिएटली। कम से कम यू विल बी कंफर्टेबल विद वेरिएबल्स टू स्टार्ट विद, कि कौन सा वेरिएबल जो है कहाँ लगता है और कैसे यूज होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ फिर। जी, बहुत जरूरी है, ये तो हो गया। कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, एक पेज पे सब कुछ लिख दो। हम्म, बेटर है इसलिए कि शिफ्ट करके इधर उधर। ऐसे इनफाइनाइट पेजेस बना सकते हैं ना, अगर कुछ नहीं, उसके बाद वो तंग करने लग जाएगा, वो देख लेगा फ्री में यूज कर रहे हैं इतने, तो बस वो उसको तुम्हें तंग करना फ्री शुरू में कर क्या यूज देगा। कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। फिर भी इनफाइनाइट बोर्ड नहीं यूज करने देता वो, बोलता है लेकिन 3 बोर्ड के बाद, इफ यू वांट एक्चुअली इनफाइनाइट, यू हैव टू डिपॉजिट मोर मनी, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, बस दे दिया ये हो गया। कैपिटलिज्म यार। अरे भाई, यू आर ऑल्सो बाई प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, द वे यू लिव लाइफ। SUV, तुम कौन से रेडी में जाते हो? रेडू ले रखा है, रेडू, रेडू क्या होता है? जमीन पे जो हाथ से, हाथ जमीन से से? हाथ से SUV क्या में करते जाते हैं, रेडू से हाथ से धक्का मारो ना बैकवर्ड, सड़क पे, आउटसाइड। हैं? कार को धक्का मत मारो बैठ के, इंटरनल फोर्स क्या कॉन्स्टिट्यूट होगी। सड़क पे बैठो, दोनों नीचे वाली कार लो बहुत लो, और हाथ जो है दोनों उस पे ग्लव्स पहनो, और पीछे की तरफ हाथ को धक्का मारो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। अरे स्केटबोर्ड जैसे हो गए चार, दो हाँ। स्केटबोर्ड लगाए, उसके हम्म। ऊपर फट्टा लगाया, हम्म। दो स्केटबोर्ड रखे नीचे, हाँ जी, हाँ जी। उनके ऊपर एक वुडन वो लगा दिया, दोनों को फिक्स कर दिया, एक कार नहीं बन गई छोटी सी नीचे बैठने हाँ वाली। जी, फिर जरूर उसके सर। साथ एक उसके यहाँ साथ से एक मैं दिल्ली। रस्सी बना लगा दी, तो जो भी कार जा रही है उस पे हुक डाल दिया। बोला हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। बोला भाई साहब, मैं यहाँ तो नहीं जाना था, लेकिन जी हम तो वो कंज्यूमरिज्म को अवॉइड कर रहे थे, जाना था हमें खाना खाने, यहाँ पे पहुंच गए यहाँ। ये भी ठीक है, ऐसे ही करते हैं सबको, कंजूसी। बोला वो रेडू ले रखा है सबने, और हुक डाला कार पे पीछे।
नहीं सर, ऐसा ना अच्छा आइडिया दे दिया आपने, मैं मोटर लगा दूंगा स्केटबोर्ड की जगह छोटी सी। वो कंज्यूमरिज्म आ गया ना। और मोटर लगा के उसमें हल्के से स्टीयरिंग व्हील्स लगा देगा और ब्रेक्स लगा देंगे। लगाओ, जरूर लगाओ। सर मैं बना दूंगा, मैं बना दूंगा, बनाऊंगा मैं। बना ही दो भाई, बना ही दो। आईआईटी में बड़ी कोशिश चल रही है कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि हाइड्रोजन से मेनली फोकस है। नहीं, मैं ना उस कार के अंदर ना सोलर पावर यूज करूंगा, सोलर पैनल बैटरी लगा। ओ। बस हो गया सेट। ओ। सर आपको आपको ले जाऊंगा, मतलब लेने आऊंगा इसमें। एक आएगी ना फॉर्च्यूनर, उसके नीचे पड़ जाएंगे। दिल्ली है ये, जाट आ गया ना। अरे ठीक है। नहीं फर्क पड़ा, दिखेगा भी दिखूंगा भी नहीं। चारों खाने चित। सर क्वेश्चन लग्जरी कार। जरूर। मैम, टैक्सी करो, बेस्ट है। यूज टैक्सी वाला स्मार्ट। तो, उबर तो महंगी होगी अब। हो जाए, लेकिन जितना गाड़ी का इंटरेस्ट होगा उससे सस्ती पड़ेगी। 20 लाख की गाड़ी है, इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा? डिप्रिसिएशन कितनी लगेगी, इंश्योरेंस के पैसे भी लगेंगे। रिस्क भी कितना, एक्सीडेंट हो जाने पे थाने में बैठो जाके, खाओ डंडे। रिस्क फ्री जाओ। मतलब टोटल कंजूसी है मतलब। हल्का रहो, कोई पार्किंग नहीं चाहिए कहीं पे। बहुत सही है। पहला क्वेश्चन इंटेंसिटी के ऊपर है। इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय एवरी केजी ऑफ द बॉडी, बाय 1 kg बॉडी। तो 10 किलो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, 1 किलो कितना करेगा? क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इंटेंसिटी के ऊपर। ये चीनी आ गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। चीनी आ गए कहाँ? यू आर डूइंग फैंटास्टिक, हे अगेन, आई लव यू, यू बोला आर लव यू लविंग। टू ब्रदर। चीनी आ गए, चीनी। और चीनिया का अटैक हो गया हमारे ऊपर। ट्रांसलेटर लगा दो ना। और चीनी हो गए, चीनी। चीनी पीपल। शुगर पीपल। हिंदी चीनी, बाय बाय। बाय बाय पीपल। शुगर पीपल सर। सर 10 आ रही है। ठीक है, यूनिट्स। सर इट वुड बी न्यूटन पर केजी। पर केजी ना? या ठीक है, गलत। न्यूटन पर केजी लिखना है। हाँ न्यूटन पर केजी लिख रहा हूँ। अब सही है। सही है जी। फिर से सेम क्वेश्चन दे दिया। सेम ही है, ओके। वेट, क्या खा रहे हो भाई अकेले अकेले तुम? मैं कुछ नहीं खा रहा। नथिंग। नहीं। क्या हुआ, कोई आवाज आ रही थी क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वैसे भी थोड़ी देर में 7 o'clock में से मेरी योगा क्लास है। फ्रेंच, जर्मन, ओ, इंग्लिश, फिजिकल, म्यूजिक, ये आपकी हॉबीज है? क्या योगा बोल रहे हो? क्लासेस। नहीं 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 नहीं, मेरी तो बस अब अभी एक ही हुई है, एक तो आपकी रहती है और एक उसकी, पर्सनल ट्रेनर। ओ योगा। योगा वाला। ओके, मेरी तो हो गई। आज हम मेरे को थोड़ा ज्यादा करवाया है। अच्छा, मेरे लिए 7 o'clock है बस। ओके, डीपली रिलैक्सिंग। काफी दिनों से मैंने छो करा नहीं था। अच्छा, मैंने वो कराया आज। आज उसने हमें 8 वो कराए। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। आर्ट ही, अच्छा बस। ठीक है। जान निकाल दी एक के अंदर। एक था जिसके अंदर, जैसे आपने ये पर्वत बनाया, हाँ फिर पर्वत में टांग अच्छा। ऊपर ले जानी है, फिर पर्वत हाँ। बनाना है, फिर रेस्टिंग पोज में जाना है, लेकिन वो उसमें नहीं करना। अच्छा, अ, वेरिएशन मतलब हाँ, एक उसमें एक 6 बार कराइए। टांग ऊपर, आगे, अच्छा। टांग ऊपर, आगे आगे, उसके बाद फिर पर्वत, भुजंग, पर्वत भुजंग, पर्वत भुजंग 6 बार। भाई अब 12 पोज मतलब, तक तो जमीन पे नहीं टच हुए हम। हाथ टूट गए मेरे। अच्छा वो क्या कहते हैं उसके लिए, पुशअप्स सॉर्ट हाँ, दंड, हाँ, ऐसे यूं जाना है आपको। तो भाई इतनी देर हवा में लटका दिया। एक ऑफ। एक उसके अंदर था ये, छठे सातवें में था। फिर लेफ्ट साइड से नहीं करवाया, एक मतलब जो मतलब 5 राउंड्स अष्टांग। नॉर्मल थे, 5 to 6 राउंड, 6 to 7 हाँ में था लास्ट के। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया उसको, खत्म नहीं होने को आ रहा था। अच्छा, वेरिएशंस होती है ये। हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल था वो। थोड़ा मतलब रेस्ट ही नहीं हो रहा था, जो यहाँ दर्द हो रहा था रिस्ट में बहुत, शोल्डर्स में बहुत दर्द होने लग गया। दम नहीं था बिल्कुल। पहली अब बार वेट, नहीं होती। हाँ जी, टू बॉडीज ऑफ मास, इंटेंसिटी भी जीरो, सो लेट द डायग्राम बना लो, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, तो 1 - x, दोनों की वजह से इंटेंसिटी निकाल लो, ऐड कर दो, इक्वल टू 0। इक्वल एंड ऑपोजिट होगी ना, दो, तो मास at that place will be getting attracted from both the sides on per kilogram basis. तो लेट द डिस्टेंस बी एक्स। You know, 70,000 लोग आते हैं मेरा पेज देखने, सब्सक्राइब नहीं करते यार। और फेसबुक का यूट्यूब का। 70,000? हाँ, वो सत्तर तब हजार बार देखते होगे, ना नहीं कि नहीं आते होगे? नहीं 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 नहीं, अच्छा। ओनली ओनली 1% ऑफ 1% पीपल हैव सब्सक्राइब, रेस्ट ऑफ द पीपल डोंट सब्सक्राइब, दोज हु कम एंड वॉच। पूरी रिपोर्ट आती है मेरे पास। अच्छा, क्या करने आते हैं, घूमने आते हैं पहले। अभी चीनी घूम रहे हैं इस पे। चाइनीज साइबर वालों को अटैक। हिंदी कैसी, हिंदी इंग्लिश कैसे समझ आ रही होगी? लिख तो रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ही ट्रोल कर रहे होगे आपको। तो ओके, लिटिल कैली, लिल कैली। ओके, बड़े सारे पटाखे और फूल भेजे हैं। नहीं, डायग्राम ही बना लेता हूँ। डायग्राम में तो बस ये दिखाना है कि उस पॉइंट पे ये 3 बना लो कोई। 3, अच्छा, बना रहे ऑलरेडी। शो द पॉइंट बिटवीन देम ना एट अ डिस्टेंस। हाँ, ये ये रहा। 1 - x हो गया, हाँ। ये x हो गया। हम्म, तो नाउ फाइंड इंटेंसिटी हेयर ड्यू टू बोथ E1 and E2 and equate them.
equal and opposite. Both are getting attracted. The central mass is getting attracted. 1 kilogram mass. So it is experiencing force from this side and this side. So the net intensity has to be zero. तो 1 मीटर, तो एक का हो गया इंटेंसिटी इवन कितना हो जाएगा, जी इंटू 10 अपॉन, ये मान लो 10 है, ये 1000 है, अपॉन 1 - x होल स्क्वायर। दूसरे का हो जाएगा जी इंटू 1000 जी अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल है, इक्वल एंड ऑपोजिट। बस एक्स निकालना है। हो ही गया बस। 30 से जी कट जाएगा 100। और ये 100 बन जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लो, +- 10, +10 लेके हाँ, देखो एक बार। नहीं ये फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर, 1 - x होल 100। राइट। तो उसका फिर स्क्वायर ले लेंगे 10, प्लस ही ले रहा उसको, प्लस माइनस ठीक है, प्लस ले लो, तो चलेगा। एक्स आ जाएगा 10x, 10 - 10x, तो एक्स आ जाएगा 1/11। 10/11। नहीं, एक मिनट, 10/11 सॉरी। तो एक्स आ गया हमारा 10/11। ठीक है, सही है, गुड है, गुड है, गुड है। सिस्टम, सर अब तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से थोड़ा सम इजी लगता है अब तो। हम्म, वो भी इजी है, उसमें कौन सा गया है। ये डुएबल है एस एल अरोड़ा से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हम्म। हाँ इजी है। पहली बार बहुत मुश्किल लगता है, उसके बाद तो ये काफी। तो वह तो मुझे सेंट्रो मासी नहीं समझ आ रहा था तो इट्स अब, अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। हाँ, नहीं मतलब जैसे कि नॉर्मल निकालना तो इजी था, बट जैसे कि लैमिना वगैरह पे आप समझ आ गए। ठीक है। some point where the whole mass is centered at a point है, ये at a point At a point पोटेंशियल above the दे रखा है, above the सब। -gm/r दिया हुआ है, and acceleration due to gravity मतलब g mm/r²। Sure. अच्छा, पर ग्रेविटी काफी कम है यार। ये बड़ा, जी mm/r में दे रखा है सर। 10⁻⁷ ही नहीं, बड़ा अजीब सा लिख रखा है ना। कौन सा जी, हाँ, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट। 10⁻⁷ है, हाँ, हाँ। माइनस है, माइनस ही होता है। तो एक फॉर्मूला है v = -gm/r, हम्म। दूसरा है g mm/r², नहीं g m/r²।
जी एम नहीं एम बाय। पोटेंशियल में, सॉरी, हाउ डू यू हैव वन यार, इट इज पर किलोग्राम बेसिस, एम नहीं होता, ये पर किलोग्राम बेसिस होता है। सो माइनस जी एम बाय आर इज पोटेंशियल। एम एम नहीं होता उसके अंदर, वो एनर्जी में होता है। ये पर किलोग्राम बेस एनर्जी है ना। हाँ ठीक। ओके। और जी जो होता है, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये भी कट गया। सो जी का फॉर्मूला है जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। So the body is at, this is Earth and the body is at a certain height from the surface. तो ये R है. So R actually is R plus H. Divide the two. ठीक है। इसके की यूज नहीं है अभी. V is equal to U plus M का कोई यूज नहीं है. G भी दे रखा है, V भी दे रखा है. Divide the two. R आ जाएगा. कट जाएगा, G M कट जाएगा. जी और बी को डिवाइड कर लो ना। तुम्हारे असाइनमेंट में केपलर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, कट गया क्या केपलर? क्या कैपिटल कर दिया? पूछ रहा हूँ. तो मैं पूछ के आता हूँ जरा, श्योर क्वेश्चन नहीं। तो एक भी नहीं था. क्या पता, हो भी सकता है, बट जरूरी भी नहीं है। पता नहीं। पूछ लो यार फिर. हाँ। पूछ लो केपलर कराना है कि नहीं कराना. अगर वो नहीं करा तो चैप्टर खत्म तो नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुआ. अभी तो है. एक भी क्वेश्चन असाइनमेंट में केपलर पे नहीं है. समझ में, पूछ लो जरा। ओए, तुम्हारे को वो नोट्स लिखवाते नहीं है सारे, या क्लास में पढ़ाते नहीं, जो पता नहीं चलता कि लिख करवाया नहीं करवाया. मतलब। बट टॉपिक तो पता होगा ना, ये कोई हाँ हाँ। कोर्स तो नहीं मिला होगा. होगा। स्कूल की वेबसाइट पे लिखा होगा क्या कोर्स में आ रहा है. हाँ। वैसे बताते नहीं, एकदम छुपा के रखते हैं। पता अभी नहीं तो क्या मैडम भी बोलूं. नहीं बताती। 1/r आ रहा है। G/V -1/r आ रहा है। हम्म. जी तो कट जाएगा. अच्छा, ठीक है, आर ही निकालना है. अर्थ वैसे हमें। आर इज इक्वल टू आर प्लस एच है. नहीं, वो 6400 किलोमीटर देखा था मीन रेडियस। तो नहीं, हाँ दिया हुआ है, ये आर यूज हो जाएगा ना आर में. आर, पहले आर तो निकाल लो. ये फिर उसमें से आर सब्ट्रैक्ट कर देना, एच आ जाएगा. टोटल फ्रॉम द सेंटर निकल गया ना ये. हम्म। एक। पुट द वैल्यूज ऑफ जी एंड बी. लिखा ही नहीं कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. नहीं नहीं, वो तो सब मैंने कहा, क्या कहते हैं, 6.4 अपॉन 5.12 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल्स टू -1/r। तो
पर एच कुछ ऐसा आ रहा है। किलोमीटर्स में आ रहा है, मीटर्स में आ रहा है? मीटर्स में। मैंने मीटर्स में निकाला है। ठीक है, करो मल्टीपल मल्टीप्लाई, सॉल्व करो। माइनस, आर को माइनस तो लेना ही नहीं है, आर हैज टू बी पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड लेना है डिस्टेंस का। नहीं, माइनस नहीं है ये। equal to- हाँ, माइनस नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्ट करो ये, इसको सॉल्व करो 5.12 को। 64 एट जार तो नहीं है ये? 64 एट जा। हाँ, क्यों नहीं। काट दो फिर। नहीं 80। बस, नहीं रुक ये जाओ। आ जाएगा 8। 8 नहीं, ये 0.8 है। हम्म। 6.4 मतलब बाई 5.12, अरे पॉइंट मैं एट आ जाएगा। 0.8 मतलब ये 80 × 10⁻⁵ है। 80 × 10⁻⁵ फाइव। नहीं। 0.8 आ गया ना। नहीं, हाँ। अच्छा। 8 × 10⁻⁶ है। हाँ, तो 80 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 80 वो मतलब। क्योंकि वो भी हाँ, तो 10⁻⁵ है यार, इतनी मैथ्स 18 नहीं। 10⁻⁵ दोनों 5 में चाहिए ना। हम्म। तो ये आ जाएगा 16 हम्म। × 10⁻⁵ हम्म। मीटर्स। तो मतलब मतलब 16 100 किलोमीटर। किलोमीटर। डन। मतलब ठीक है, वी एटमॉस्फेयर। विल कंटिन्यू टू डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस टुमारो ऑल्सो। अभी तुम काफी कच्चे हो इसके अंदर, अभी तुमने फ्रेश फ्रेश सीखा है। सो फर्स्ट हाफ वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑन दैट, ऑन दिस टॉपिक। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एस्केप वेलोसिटी। बट इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, इस टॉपिक की। एंड यू विल फाइंड आउट वेदर वी हैव टू डू ग्रेविट केप्लर्स लॉ और नॉट, थ्योरीज, क्योंकि एक भी क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं है, तो काट तो नहीं दिया।